الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألكم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى آمنت باللہ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین المبین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے ہم اور آپ ایک بار عقیدت و محبت کے ساتھ اپنے آقا و مولا دونوں عالم کے دولہا رحمت للعالمین طٰہٰ و یاسین جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ گہربار پر انوار باوقار میں درود و سلام کا ہدیہ نچھاور کریں اور پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا کریمنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ شہزادے گلگوں قبا شہید دست کربلا مظلوم جور و جفا نواس رسول جگر گوش بطول سیدنا سرکار امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا بڑا عظیم مرتبہ ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت کچھ اس طرح ہوتی ہے، واقعات ایسے ہوتے ہیں۔ میرے آقا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی چچی حضرت ام الفضل جو حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی زوجہ محترمہ ہیں، انہوں نے ایک رات خواب دیکھا کہ میرے آقا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس جسم پاک سے گوشت کا ٹکڑا کاٹ کر حضرت ام الفضل کی گود میں دیا گیا ہے۔ حضرت ام الفضل بہت پریشان ہوئی کہ میرے سرکار کے جسم کا گوشت کاٹ کر میری گود میں دیا گیا۔ رات بھر بڑی کرب و اضطراب میں انہوں نے گزارا۔ صبح ہوئی، بارگاہ رسول میں حاضر ہوئی، عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام فداک ابی و امی، میرے ماں باپ آپ کے نام پہ قربان ہو یا رسول اللہ، میں نے ایک بہت غلط خواب دیکھا ہے، ڈراؤنا خواب دیکھا ہے۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں چچی بتاؤ کیا خواب دیکھا ہے؟ عرض کرتی ہیں وہ زبان سے ادا کرنے کے لائق نہیں ہے۔ آقا فرماتے ہیں چچی بتاؤ تو صحیح کیسا خواب ہے؟ تو حضرت ام الفضل عرض کرتی ہیں کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ آپ کے جسم سے گوشت کا ٹکڑا کاٹا گیا ہے اور وہ گوشت کا ٹکڑا میری جھولی میں ڈالا گیا ہے۔ میرے آقا جب اتنا سنتے ہیں تو مسکرا دیتے ہیں سبحان اللہ۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں چچی تم نے بڑا اچھا خواب دیکھا ہے۔ کہا یا رسول اللہ وہ کیسے؟ ارشاد فرمایا میری بیٹی لخت جگر نور نظر فاطمہ کے گھر ایک حسین بچہ پیدا ہوگا، وہ تمہاری گود میں دیا جائے گا۔ اور زور سے بولو، اور وہ تمہاری گود میں دیا جائے گا، تم اس کو اپنی گود میں لوگے، یہی اس کی تعبیر ہے۔ تو کتنا اچھا خواب ہے۔
वक्त गुजरते देर नहीं लगी, ऐलान हुआ फातिमा ज़हरा के घर एक हसीन व जमील बच्चा आ गया है। 5 शाबानुल मुअज्जम की तारीख सन 4 हिजरी हजरत इमाम हुसैन दुनिया में तशरीफ ले आए। मेरे आका तशरीफ ले गए, अपनी गोद में लिया। लेने के बाद दाहिने कान में अजान, बाईं कान में इकामत पढ़ी और नाम हुसैन तजवीज़ फरमाया। इरशाद फरमाया कि बड़े बेटे का नाम हसन है, हजरत हारून अलैहिस्सलाम के बड़े बेटे शब्बर के नाम पे और हजरत हारून के छोटे बेटे शब्बीर के नाम पे इस छोटे बच्चे का नाम हुसैन रखता हूं। सुभान अल्लाह। तो हुसैन भी हजरत इमाम हुसैन को कहा जाता है, शब्बीर भी हजरत इमाम हुसैन को कहा जाता है। तो यह हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु की शान है कि अल्लाहु अकबर, मेरे आका सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गोद में लिया। आप देख रहे हैं, आप प्यार कर रहे हैं, आप मोहब्बत कर रहे हैं। दाहिनी कान में अजान पढ़ा है, बाईं कान में इकामत पढ़ी है। आज हम और आपके घर में भी बच्चे पैदा होते हैं। बहुत से लोग तो ऐसे हैं कि फौरन अजान तो क्या 40 दिन गुजर जाता है, जब मस्जिद लाते हैं टहलाने तब कहते हैं हजरत अजान कह दीजिए। 40 दिन के बाद कहते हैं कि अजान कह दीजिए, इकामत पढ़ दीजिए। बताइए मेरे आका सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत क्या है कि बच्चा पैदा हो, उधर उसको नहला धुला के फौरन उसके कान में अजान पढ़ी जाए, इकामत पढ़ी जाए। मेरे आका सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, क्योंकि जब बच्चा पैदा होता है तो देखता है कि चारों तरफ शैतान ने जाल बिछा रखे हैं। वो वादा करके आता है परवरदिगार की बारगाह से कि मौला दुनिया में जाकर हम तेरी इबादत करेंगे, तेरी बंदगी करेंगे। मगर दुनिया में आने के बाद जब देखता है चारों तरफ शैतान ने जाल बिछा रखा है तो बच्चा रोने लगता है, बच्चा रोने लगता है। अगर बच्चा पैदा होते ही रोए ना तो लोग कहेंगे बच्चा क्या बात है, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये बच्चा बोल नहीं पाएगा, बच्चा बौरा तो नहीं है, क्यों नहीं रोया, आखिर क्या वजह है, क्या बच्चा मरा हुआ तो नहीं पैदा हुआ है। तमाम तशवीश होती हैं और जब बच्चा रो देता है तो सारे घर वाले खुश हो जाते हैं कि बच्चा सही सलामत है। मगर हजरत इमाम हुसैन के विलादत देखो, हजरत इमाम हुसैन दुनिया में तशरीफ लाए हैं तो रोते हुए नहीं आए हैं, क्योंकि वहां शैतान का कहीं दूर दूर तक दखल नहीं है। ये मेरे मुस्तफ़ा का घर है, ये फातिमा और अली का घर है, ये मेरे नबी का खानदान है, कैसे शैतान करीब आएगा। मेरे आका ने हजरत इमाम हुसैन के कान में अजान और इकामत इसलिए पढ़ी कि ऐ दुनिया वालों, ऐ मेरे उम्मतियों, तुम्हारे घर भी जब बच्चा पैदा हो तो तुम भी कान में अजान पढ़ा करो, कान में इकामत पढ़ा करो। दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीअना नबीना करीमना मौलाना मुहम्मद मादनिल जूद वल करम वालिल किराम इब्निल करीम मुबारक वसल्लिम सलातुम व सलामुन अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम। तो हजरात गिरामी, मेरे आका सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अब बच्चे को लिया है, देख रहे हैं, जियारत कर रहे हैं, चूम रहे हैं, पेशानी चूम रहे हैं, लब चूम रहे हैं, रुखसार चूम रहे हैं। और 7वें दिन फिर मेरे आका ने हजरत इमाम हुसैन का अकीका फरमाया है और बाल के वजन के बराबर चांदी खैरात फरमाया है। मेरे इमाम हुसैन अल्लाह अल्लाह ऐसे थे जैसे मेरे मुस्तफ़ा के हम शबीह। मैंने कल बताया भी था, हजरत इमाम हसन सर से लेकर सीने तक मेरे आका के हम शबीह थे और हजरत इमाम हुसैन सीने से लेकर पैर तक मेरे मुस्तफ़ा के हम शबीह थे। मेरे मुस्तफ़ा के हम शबीह दोनों बच्चे, आधा हुसैन आधा हसन, आधा हुसैन आधा हसन, आधा हुसैन आधा हसन की फख्र सुल्तान ज़मन, आधा हुसैन आधा हसन। और जोर से बोल दो, आधा हुसैन आधा हसन। कोई माने या न माने ये हकीकत है कि है, कोई माने या न माने ये हकीकत है कि है, कि दीन हक का पैरहन आधा हुसैन
आधा हसन दीन हक का पैरहन, आधा हुसैन आधा हसन, आधा हुसैन आधा हसन। एक शेर और ले लीजिए, मेरे आका सरवरे कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हदीस है, अल हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, यानी हुसैन मुझसे है मैं हुसैन से हूँ। बोलो तड़प के सुभान अल्लाह। हुसैन मुझसे है मैं हुसैन से हूँ। अब सुनिए, अल हुसैनो मिन्नी से यह साफ जाहिर हो गया, अल हुसैनो मिन्नी से यह साफ जाहिर हो गया कि मुस्तफा का है बदन आधा हुसैन आधा हसन, मुस्तफा का है बदन आधा हुसैन आधा हसन, आधा हुसैन आधा हसन। तो हजरात, हजरत इमाम हुसैन की अजमत मेरे आका की बारगाह में देखो, कितना प्यार है अपने शहजादे से। एक बार हजरत ज़ैद बिन हारिसा रदियल्लाहु ताला अन्हु आका की बारगाह में हाजिर हुए तो देखा मेरे आका कुछ चादर में लिपेटे हुए हैं। तशरीफ लाए, जब चादर में लिपेटे हुए तो अर्ज करते हैं, आका चादर के अंदर क्या है? मेरे आका ने फरमाया, चादर के अंदर देखना चाहते हो क्या है? अर्ज करते हैं, हुजूर दिखा दे तो करम होगा। मेरे आका ने जब चादर हटाया तो देखा उसमें हजरत इमाम हुसैन लिपटे हुए हैं। ये मेरे आका सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में आजमत है हजरत इमाम हुसैन की। कभी इमाम हुसैन के दिल को मेरे मुस्तफ़ा ने नहीं दुखाया है। हजरत इमाम हुसैन मस्जिद में आते थे, मेरे आका सजदे में होते थे, पुश्त पे हजरत इमाम हुसैन सवार हो जाया करते थे। एक मर्तबा हजरत मेरे आका असर की नमाज पढ़ा रहे थे, सहाबा नमाज पढ़ रहे थे। मेरे आका सरवरे कायनात ने जब नियत बांधी, हजरत इमाम हुसैन बचपन के आलम में हैं, टहलते हुए मस्जिद में पहुंच गए, क्योंकि मस्जिद पास ही में थी। पहुंचे और पहुंचने के बाद नाना के करीब पहुंच गए। देखा नाना जान कयाम में हैं, कयाम में हैं, आप क़िरात फरमा रहे हैं, कयाम में हैं। कयाम में देखते रहे, रुकू में गए, हजरत इमाम हुसैन देखते रहे। जब सजदे में गए तो हजरत इमाम हुसैन पुश्त पे जाके सवार हो गए, और पुश्त पे जाके सवार हो गए तो कितनी देर तक बैठे? काफी देर तक बैठे। मेरे आका ने उस वक्त तक सजदे से सर नहीं उठाया जब तक इमाम हुसैन खुद उतर नहीं गए, क्योंकि मेरे आका ने सोचा अगर मैं सजदे से सर को उठाता हूं हुसैन गिर जाएगा, नवासा गिर जाएगा, बच्चा गिर जाएगा, उसको तकलीफ हो जाएगी। तो मेरे आका ने सजदे को लंबा कर दिया, सुभान रब्बियल आला, सुभान रब्बियल आला, सुभान रब्बियल आला पढ़ते जा रहे हैं। सजदा लंबा होता जा रहा है, यहां तक कि तारीख बता रही है, हदीसें बता रही है कि मेरे आका ने उस सजदे में 72 बार तस्बीह सुभान रब्बियल आला पढ़ी। 3 बार आप पढ़ते हैं अंदाजा होता है, 5 बार पढ़ते हैं अंदाजा होता है, 7 बार पढ़ते हैं कितना टाइम लग जाता है। अगर 5 बार पढ़ो, बास लोग सोचेंगे कि इमाम ने कितना लंबा सजदा कर दिया, आज सर ही नहीं उठाएंगे। मगर जब देखो, क्योंकि सजदे का जो जुग्राफिया होता है, उसका जो आलम होता है, पेशानी और नाक पर जोर होता है, पेशानी और नाक ही पे पूरी जोर पड़ती है। आदमी सोचता है कितनी जल्दी हम सर को उठा लें, मगर देखो मुस्तफ़ा जाने रहमत सजदे में है, नवासा पुश्त पे है। 1-2 बार नहीं, 72 तस्बीह मेरे आका ने जब पढ़ी तो हजरत इमाम हुसैन नीचे उतरे। भला बताओ कितनी तकलीफ हुई होगी मेरे आका को, मगर सजदे से सर को नहीं उठाया। क्यों नहीं उठाया? उसमें भी हिकमत है। हजरत इमाम हुसैन पुश्त से उतरे और फिर खेलते हुए टहलते हुए घर पहुंचे, अम्मी की गोद में आकर बैठ गए और अम्मी से जो है बातें मीठी मीठी करने लगे। अम्मी जान आज एक वाकया हो गया। कहा बच्चे क्या हुआ? कहा वाकया ये हुआ है कि मैं आज मस्जिद नबवी में गया था,
नाना जान नमाज पढ़ा रहे थे, मैंने देखा आपने क़याम किया, मैं खड़ा रहा, रुकू किया, मैं खड़ा रहा। जब सजदे में नाना गए तो मैं पुश्त पे सवार होकर बैठ गया, और पुश्त से मैं जब तक उतरा नहीं हूं, नाना ने सजदे से सर नहीं उठाया है। अम्मी जान ने इरशाद फरमाया, बेटा तुमने बड़ा गलत काम कर दिया है, क्यों बैठ गए सजदे में, जो है कितनी तकलीफ हुई होगी नाना को। अर्ज करते हैं, अम्मी हुजूर, नाना जान ने 72 तस्बीह पढ़ डाली सजदे में, उसके बाद मैं उतरा। कहा, इतना टाइम तक तुम बैठे रहे, इतनी देर तक बैठे रहे कि 72 तस्बीह पढ़ डाली। हजरत इमाम हुसैन ने तड़प कर इरशाद फरमाया, अर्ज किया, अम्मी हुजूर परेशान होने की जरूरत नहीं है, मेरे नाना ने अगर मेरा बोझ आज सजदे के आलम में उठाया है तो कल जब नाना की शरीयत को जालिम बदलने लगेंगे तो सजदे में सर कटा के इस्लाम और शरीयत को जिंदा कर देंगे, इस्लाम और शरीयत को बुलंद कर देंगे। और अम्मी जान परेशान न हो, 72 तस्बीह नाना जान ने पढ़ी है, हम अकेले नहीं 72 को कटवाकर उनके खून से शजरे इस्लाम को हरा भरा करके कयामत तक उसको लहलाता हुआ छोड़ कर जाएंगे। ये हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु की आजमत है कि अल्लाह अकबर, मेरे आका ने कभी हजरत इमाम हुसैन का दिल नहीं दुखाया है, मेरे आका ने कभी जो है इमाम हुसैन को झड़का नहीं है, कभी डांटा नहीं है, कभी किसी तरह की कोई अजियत नहीं दी है, कभी रुखसार को चूमते हैं, कभी गले को चूमते हैं, कभी पेशानी को चूमते हैं। हजरत जिब्रील बचपन ही में आ गए, आने के बाद अर्ज किया, या रसूलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम, आप जानते हैं आपका बेटा जो ये हुसैन है, जिससे आप प्यार कर रहे हैं, जिससे आप मोहब्बत कर रहे हैं, एक वक्त ऐसा आएगा कि आपकी उम्मत आपके इस शहजादे को करबला के मैदान में शहीद कर देगी। और देखिए, करबला की सुर्ख मिट्टी है जो मैं लेकर आया हूं, मेरे आका को वो मिट्टी दिया, हजरत प्यारे आका सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो मिट्टी लेकर के हजरत उम्मे सलमा उम्मुल मोमिनीन को अता फरमाया। इरशाद फरमाया, ऐ उम्मे सलमा, इसको शीशी में भर के रख लो। जब मेरे आका ने ये खबर जाकाह सुनी तो आपके आंखों से आंसू जारी हो गए, आपके आंखों से आंसू गिरने लगे, आप रोने लगे, बहुत रोए। मगर मेरे आका सरवरे कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हजरत इमाम हुसैन से बड़ी मोहब्बत किया है, बड़ा प्यार किया है, बड़ी उल्फत हजरत इमाम हुसैन के साथ किया है। एक बार और प्यार कर रहे थे कि जो पानी फरिश्ता बरसाता है, पानी बरसाने पर जो फरिश्ता मुकर्रर है वो खुदा से इजाज़त लिया, परवरदिगार से इजाज़त लिया, ऐ मौला मुझे इजाज़त दे दे, मैं तेरे महबूब से मिलना चाहता हूँ, मैं तेरे महबूब के नवासे की ज़ियारत करना चाहता हूँ। अब वो इजाज़त मिली, आका की बारगाह में हाजिर हुआ वो फरिश्ता, तो देखा मेरे आका बहुत प्यार कर रहे हैं, सीने से चिमटाए हुए हैं बेटे हुसैन को। तो उस फरिश्ते ने आकर सलाम किया, और सलाम करने के बाद फरिश्ते ने अर्ज किया, या रसूलल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम, आप जिस इस बच्चे से इतनी मोहब्बत कर रहे हैं, इतना प्यार कर रहे हैं, या रसूलल्लाह मैदान नैनवा दश्ते करबला में नहरे फुरात के किनारे आपकी उम्मत इसे शहीद कर देगी। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, इसकी खबर तो मुझे जिब्रील पहले ही दे गए हैं। उसने कहा, या रसूलल्लाह मैं भी मिट्टी लेकर आया हूं, और लीजिए ये मिट्टी, जब ये बच्चा शहीद होगा करबला में तब ये मिट्टी खून बन जाएगी। मेरे आका ने उस मिट्टी को भी हजरत उम्मे सलमा को दिया और इरशाद फरमाया, इसको हिफाजत से शीशी में रखो, उसको भी शीशी में रखा। मेरे आका सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी ये मालूम था बेटा हुसैन करबला में शहीद हो जाएगा, तमाम खानदान वालों को मालूम था बेटा हुसैन शहीद कर दिया जाएगा, मगर कभी मेरे आका ने ये दुआ नहीं फरमाई, आए मौला तू इनको शहादत से बचा ले, इनको जालिम के जुल्म बर्बरीयत से बचा ले, इनको तू जालिम के जो है जालिम के जुल्म सितम से बचा ले। कभी आपने नहीं दुआ किया, जब दुआ किया तो यही दुआ किया, ऐ मौलाए करीम मेरे बेटे हुसैन को सब्र व इस्तिकामत अता फरमाना, मेरे बेटे को ऐसा सब्र देना कि ऐ मौला ये अपने इम्तिहान में कामयाब हो जाए। क्योंकि मेरे आका ने इरशाद फरमाया, अल हुसैन मिन्नी वाना मिनल हुसैन, और जोर से बोलो, अल हुसैन मिन्नी वाना मिनल हुसैन, हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूं। अब जरा इसके नुकात मैं आपके जहन में उतार दूं।
یہ بھلا بتائیے کہ آپ سے آپ کے بیٹے ہوں گے، بیٹے سے آپ نہیں ہوں گے؟ یہاں ہے بیٹا سے باپ نہیں ہوتا ہے، باپ سے بیٹا کا کیا فرماتے ہیں؟ الحسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں، حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں۔ یا رسول اللہ یہ تو بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ حسین آپ سے ہیں کیونکہ آپ کی بیٹی سے ہیں، آپ کی بیٹی نہ ہوتی حسین نہ ہوتے، آپ نہ ہوتے حسین نہ ہوتے، آپ ہیں تو آپ سے آپ کی بیٹی ہے، آپ کی بیٹی سے آپ کے بیٹے حسین ہیں۔ کوئی حدیث حکمت سے خالی نہیں ہے، کوئی زبان کوئی الفاظ حکمت سے خالی نہیں ہے۔ اب ذرا سنیے حسین سے مصطفیٰ کیسے ہیں؟ مصطفیٰ سے تو حسین ہیں، یہ تو سمجھ میں بات آ گئی، حسین سے مصطفیٰ کیسے ہیں؟ اب ذرا سنیے، میرے آقا کو اللہ نے ساری کائنات سے افضل بنایا، اور زور سے بولو، اور تمام انبیاء کرام کو پھول بنایا تو میرے نبی کو اس کا گلدستہ بنایا۔ میرے نبی کے اندر سارے اوصاف اللہ نے دیے، ہر نبی کو چند اوصاف، کسی کو 2 معجزے، کسی کو 4 معجزے، کسی کو 10 معجزے، کسی کو 20 معجزے، یہاں تک کہ سب کو جو ہے گنتی کے معجزے اللہ نے عطا فرمائے، اوصاف و کمالات عطا فرمائے، مگر میرے مصطفیٰ کو سر سے لے کر پیر تک معجزہ بنا کر بھیجا، سر سے لے کر پیر تک اوصاف بنا کر بھیجا، امام الانبیاء بنا کر بھیجا، سب سے افضل بنا کر بھیجا، سب سے اعلیٰ بنا کر بھیجا۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ شہادت ایک بڑا عظیم منصب ہے، شہادت ایک بڑا عظیم منصب ہے، اور شہادت اور وفات دونوں اکٹھا نہیں ہو سکتے۔ ایسے کسی کی موت ہو اور اس کو شہادت بھی ہو، دونوں باتیں اکٹھا ہو سکتی ہیں؟ نہیں ہو سکتی ہیں۔ تو جب دونوں باتیں اکٹھا نہیں ہو سکتی، میرے مصطفیٰ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم وصال فرمائے دنیا سے، آپ کی وفات ہوئی دنیا سے، تو شہادت تو نہیں ملی۔ تو اب شہادت جو عظیم منصب ہے، وہ عظیم منصب جب میرے مصطفیٰ کو نہیں ملی ہے تو گویا انبیاء میں سے بعض نبیوں کو شہادت بھی ملی ہے، تو اس شہادت کے منصب میں کمی رہ گئی کہ وہ شہادت کا منصب مصطفیٰ کو نہیں ملا۔ تو اس فرماتے ہیں الحسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ آقا فرماتے ہیں سارے کمالات میرے اندر ہیں، اب سنو مجھے وفات ہوئی ہے، حسین کو شہادت ہوگی، اور بظاہر تو وہ شہادت حسین کی ہوگی، مگر اس کے اوصاف و کمالات مجھے حاصل ہوں گے، اس کے اوصاف و کمالات مجھے ملیں گے۔ تو حضرات اسی لیے میرے آقا نے فرمایا الحسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں۔ حضرت امام حسین کا مرتبہ میرے آقا کی بارگاہ میں دیکھیے، میرے آقا کی بارگاہ میں ایک بار حضرت امام حسن و حسین تختی لکھ کر لائے، بول دو سبحان اللہ۔ ہم لوگوں نے بھی تختی لکھی ہے، اب تو بچے تختی تو دیکھتے ہی نہیں ہے، کاپی ہی میں سارا کام ہوتا ہے۔ اب تو تختی ایک کنارے رکھ گئی، تبھی تو اب آج کل رائٹنگ نہیں بچوں کی بن پاتی ہے، خوش خط اچھی لکھاوٹ نہیں بن پاتی ہے۔ پہلے ہم لوگوں نے خوب تختی لکھی ہے تو اس میں لکھتے تھے مٹاتے تھے، لکھتے تھے مٹاتے تھے، وہ اساتذہ خط بنا کے دیتے تھے، اچھی لکھاوٹ اسی تختی سے شروع ہوتی تھی۔ تو حضرت امام حسن و حسین نے بھی اپنی اپنی تختی لکھی، اور لکھنے کے بعد آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کیا نانا جان بتائیے کس کی تختی اچھی ہے؟ اور زور سے بولا کیجئے تبھی تو بات سمجھ میں آئے گی کہ آپ سن رہے ہیں۔ کس کی تختی اچھی ہے؟ میرے آقا نے سوچا اگر میں حسن کی تختی کہتا ہوں اچھی ہے، حسین کا دل مجروح ہوگا، اگر میں حسین کی تختی کہتا ہوں اچھی ہے، حسن کا دل مجروح ہوگا، ان کا دل دکھے گا۔ میرے آقا نے فرمایا اے میرے شہزادو، تمہارے ابا علی باب مدینۃ العلم ہیں، چلے جاؤ انہی کے پاس، وہ اس کا فیصلہ کر دیں گے کس کی تختی اچھی ہے۔ لے کر چلے حضرت علی کی بارگاہ میں، عرض کیا ابا جان فیصلہ فرمائیے تختی کس کی اچھی ہے؟ حضرت مولا علی نے ارشاد فرمایا بیٹو تم کو تو نانا جان کی بارگاہ میں جانا چاہیے تختی کے لیے۔ عرض کرتے ہیں نانا جان کی بارگاہ میں گیا تھا، انہوں نے آپ کے پاس بھیجا ہے،
हज़रत अली समझ गए कि सिर्फ दिल न टूटे, इसलिए आका ने मेरे पास भेज दिया है कि जाओ वो फैसला करेंगे। आपने सोचा मैं कैसे फैसला कर दूं कि तुम्हारी तख्ती अच्छी है कि तुम्हारी तख्ती अच्छी है? फरमाया फातिमा के पास जाओ, अपनी माँ के पास जाओ, वो खातूने जन्नत हैं, वो फैसला कर देंगी किसकी तख्ती अच्छी है। अब शहजादे गए हजरत फातिमा की बारगाह में, मचल जाते हैं दामन में, अर्ज करते हैं अम्मी जान फैसला कर दीजिए, हसन की तख्ती अच्छी है कि हुसैन की तख्ती अच्छी है। हजरत फातिमा ज़हरा खातूने जन्नत ने इरशाद फरमाया, शहजादो अरे तुमको इसका फैसला नाना जान से करवाना चाहिए, वो इमामुल अंबिया हैं। अर्ज करते सबसे पहले तो नाना जान ही के पास गया था, मगर नाना जान ने अब्बा जान के पास भेज दिया, अब्बा जान ने आपके पास भेज दिया है। समझ गई कुछ नहीं, राज यही है कि अगर एक की तख्ती कह देते हैं अच्छी है तो दूसरे का दिल दुखेगा, दूसरे का दिल गमगीन होगा, रंजीदा होगा, तो उनके दिल को गमगीन और रंजीदा ना करने के लिए सिर्फ ये भेजा जा रहा है दूसरों के पास। हजरत फातिमा ज़हरा फरमाती हैं बेटो अरे सुनो, हम तो खातूने जन्नत जरूर हैं, तुम्हारे अब्बा बाबे मदीनतुल इल्म जरूर हैं, मगर तुम्हारे नाना तो इमामुल अंबिया हैं, सारी कायनात के इमाम हैं। जाओ इसका फैसला वही करेंगे, उसके उनके अलावा कोई दूसरा फैसला नहीं कर सकता है। अब ये बच्चे मचलते हुए फिर नाना जान की बारगाह में हाजिर हुए। अर्ज करते हैं नाना जान अब्बू जान की बारगाह में गए थे, उन्होंने अम्मी जान के पास भेजा, उनके पास गए थे, उन्होंने फिर आपके पास भेजा, किसी ने फैसला नहीं किया। अब आप करिए ना इसका फैसला, आप क्यों नहीं कर रहे हैं? मेरे आका ने इरशाद फरमाया जिसका फैसला फातिमा ने न किया हो, जिसका फैसला अली ने न किया हो, उसका फैसला मैं भी नहीं करूंगा। आए मेरे शहजादो, अब तुम्हारा फैसला वो परवरदिगार करेगा कि किसकी तख्ती अच्छी है, किसकी तख्ती अच्छी है। हाथ उठाया खुदा की बारगाह में, है मौला अली ने दिल नहीं दुखाया, फातिमा ने दिल नहीं दुखाया, मैं कैसे दिल दुखा सकता हूं इन शहजादों का? मौला तू फैसला कर दे। हजरत जिब्रील फौरन जन्नत से एक सेब लेकर हाजिर हो गए। सुभान अल्लाह। अर्ज करते हैं हुजूर अब रब फैसला करेगा इसका किसकी तख्ती अच्छी है। दोनों तख्ती रखी गई। हजरत जिब्रील अमीन ने अर्ज किया या रसूल अल्लाह अब इस सेब को ऊपर उछाला जाए, जिसकी तख्ती पे सेब गिरेगा उसी की तख्ती अच्छी होगी, उसी की लिखावट अच्छी होगी। मेरे आका ने सेब को उछाल दिया। जब सेब ऊपर गया तो सेब भी अल्लाह की मखलूक है। बोल दो अल्लाह ही ने तो पैदा किया है। ये जितने घास फूस हैं ये सब तो अल्लाह की हम्दो सना करते हैं। हदीस शरीफ में है जब तक ये पेड़ में पत्ते हरे रहते हैं, लगे होते हैं, उस वक्त तक लगे होते हैं जब तक अल्लाह की तारीफ करते रहते हैं। और जिस दिन अल्लाह की तारीफ से गाफिल होते हैं, हवा का झोंका आता है, टूट के गिर जाते हैं, और या तो उसी दरख्त के ऊपर सूख जाते हैं। इससे क्या पता चला कि पत्ते हरे उस वक्त तक रहते हैं जब तक अल्लाह की तारीफ करते हैं। तो इंसान जिसको अल्लाह ने जुबान दिया है, अगर वो अल्लाह की इबादत छोड़ देगा तो वो कहां से हरा भरा रह सकता है? वो भी हरा भरा नहीं रह सकता है। लिहाजा हरे भरे रहना है तो अल्लाह की इबादत तो बंदगी करते रहना है। सेब ऊपर गया, उसने खुदा की बारगाह में गिड़गिड़ा के दुआ किया, है मौला अगर मैं हसन की तख्ती पे गिरता हूं तो हुसैन का दिल मजरूह होगा, मैं हुसैन की नजर में गिर जाऊंगा। अगर हुसैन की तख्ती पे गिरता हूं तो हसन की नजर में मैं गिर जाऊंगा, मजरूह हो जाऊंगा, मेरा कोई वकार नहीं रहेगा। लिहाजा है मौला जब नबी ने इमामुल अंबिया ने बच्चों का दिल नहीं मजरूह किया, बाबे मदीनतुल इल्म मौला अली ने बच्चों का दिल मजरूह नहीं किया, खातूने जन्नत फातिमा ज़हरा ने बच्चों का दिल मजरूह नहीं किया, तो हमारी जात से अगर मजरूह होता है तो जमाना की नजर में मेरा कोई वकार नहीं रह जाएगा। जब वो उसने खुदा की बारगाह में गिड़गिड़ा कर दुआ किया तो रब के हुक्म से वो सेब दो टुकड़े हो गया। एक टुकड़ा हसन की तख्ती पे गिरता है, दूसरा टुकड़ा हुसैन की तख्ती पे गिरता है। इस तरह से मकाम व अजमत हजरत इमाम हसन व हुसैन का मेरे नबी की बारगाह में पता चलता है। कितना बड़ा मकाम है। एक बार कुश्ती लड़ रहे थे दोनों शहजादे, बोल दो सुभान अल्लाह। हम और आप है कुश्ती देखते हैं टीवी पर, टेलीविजन पर कुश्ती देखते हैं,
अखाड़े में कुश्ती देखते हैं, मगर कुर्बान हो जाओ कि जिसकी कुश्ती नबियों का इमाम देख रहा हो। हजरत इमाम हसन और हुसैन कुश्ती लड़ रहे हैं, मेरे आका बैठे हुए मुलाहिजा फरमा रहे हैं, हजरत अली भी देख रहे हैं, हजरत फातिमा भी देख रही हैं। मेरे आका हजरत इमाम हसन से फरमाते हैं, हसन हुसैन को यहाँ से पकड़ो, हुसैन को वहाँ से पकड़ो, हुसैन को यहाँ से पकड़ो, इस दाव पेच के साथ पकड़ो। हजरत फातिमा अर्ज करती हैं, अब्बू जान हुसैन छोटे हैं, हसन बड़े हैं, हसन से आप कह रहे हैं छोटे को पकड़े, उसका दिल मजरूह होगा कि नहीं? मेरे आका फरमाते हैं, शहजादी तुम्हें पता नहीं, हसन को मैं कह रहा हूं पकड़ो और हुसैन से जिब्रील अमीन कह रहे हैं पकड़ो। इस तरह से दिल कैसे मजरूह होगा? सरदार अंबिया कह रहा है हुसैन से, हसन से, और सरदार मलाइका कह रहा है हुसैन से। लिहाजा पता चला हजरत जिब्रील अमीन आए हैं बारगाहे हसनैन में उनकी कुश्ती कराने के लिए। अल्लाह अल्लाह, क्या मकाम है। एक बार हजरत इमाम हसन व हुसैन ईद के मौके पर अम्मी जान से अर्ज करती हैं, अम्मी जान लिबास नहीं है, अम्मी जान कपड़े नहीं है, सुबह ईद है, हम कैसे जो है ईदगाह को जाएंगे? मदीने के बच्चे अच्छे अच्छे नए नए कपड़े पहने होंगे, हम पुराने लिबास में कैसे ईदगाह को जाएंगे? ईद हम कैसे करेंगे? हजरत फातिमा ज़हरा ने इरशाद फरमाया, ऐ मेरे शहजादो परेशान मत हो, दर्जी तुम्हारे कपड़े लेकर आएगा। और जोर से, और जोर से, दर्जी तुम्हारे कपड़े लेकर आएगा। तसल्ली जब दिया तो बच्चे सो गए। सुबह को उठे, पूछा अम्मी जान कहाँ है दर्जी, कहाँ है कपड़े? हजरत फातिमा ज़हरा का दिल मजरूह हो गया, खुदा की बारगाह में सजदे में सर रखा, रोने लगी, है मौला, है परवरदिगार आलम, तू खूब जानता है फातिमा गुर्बत में जिंदगी गुजार रही है, हमारे पास दौलत नहीं, सरवत नहीं कि हम बच्चों के लिए कपड़े खरीद सकें। मैंने तो उनके दिल रखने के लिए कह दिया था दर्जी लेकर आएगा, ना किसी दर्जी को कपड़ा दिया है, ना सिलाने के लिए, ना बुलाने के लिए, कुछ भी नहीं, मगर मौला मैंने उनके दिल को रखने के लिए कह दिया था कि दर्जी लेकर आएगा। आए मौला मैंने कह दिया था, अब फातिमा के जुबान की लाज तू रख ले, इन बच्चों के कपड़े का इंतजाम फरमा दे। आप उधर अभी सजदे में खुदा से दुआ कर ही रही थी, दरवाजा खटखटाया गया, पूछा गया कौन? कहा अहले बैत का दर्जी हूं। सुभान अल्लाह, और जोर से, अहले बैत के घर का दर्जी हूं। दरवाजा खोला गया, कपड़ा मिल गया, दोनों शहजादों के अच्छे अच्छे खूबसूरत लिबास हैं, ऐसे लिबास हैं कि जो दुनिया में जिनकी मिसाल नहीं है। अल्लाहू अकबर। अब हजरत फातिमा बच्चों को नहला के कपड़े पहना रही थी, मेरे मुस्तफ़ा तशरीफ ले आए, और जब मेरे मुस्तफ़ा तशरीफ लाए देखा फातिमा बहुत खुश हैं, बच्चों को कपड़े पहना रही हैं। मेरे आका ने पूछा है फातिमा पता है ये कपड़े कहाँ से आए? हजरत फातिमा अर्ज करती हैं, अब्बू जान मैंने तो न लाने वाले को आते देखा है, न जाते देखा है, न उसने मेरा चेहरा देखा है, न मैंने उसका देखा है, क्योंकि मुझे कभी किसी गैर महरम ने देखा ही नहीं, तो हम उसके सामने जाएं कैसे? जब उसने कहा दर्जी है तो हम नहीं गए। बच्चे कपड़ा लेकर चले आए। मेरे आका सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो शहजादी इतना बड़ा इफ्फत माब कि अल्लाहू अकबर, खातूने जन्नत ने आखिरी वक्त में इरशाद फरमाया था, मेरा जनाजा रात में उठाना, दिन में ना उठाना, मेरा जनाजा ऐसे उठाना कि मेरे जनाजे के ऊपर किसी गैर की नजर ना पड़े। अल्लाहू अकबर। हजरत अस्मा बिनते उमैस से हजरत फातिमा ने फरमाया था कि कोई ऐसा गहवारा तैयार करो जिसमें जो है बेपर्दगी न हो, जनाजा बहुत अच्छी तरह से पर्दे के साथ चला जाए। तो चूंकि हबशा में हजरत अस्मा बिनते उमैस रह चुकी थी तो वो देख चुकी थी, हबशा के वहां रिवाज था हबशा के लोगों में कि जब औरतों का जनाजा लेकर चलते थे तो चारपाई पर एक गहवारा लकड़ी से ऐसे गोल बना दिया करते थे, आगे से लेकर पीछे तक, उसके ऊपर पर्दा डाल दिया करते थे, चादर
चादर डाल दिया करते थे, तो उसी तरह से वो देख चुकी थी, तो उस तरह से वो गहवारा बनाया। हजरत फातिमा से कहा, अरे फातिमा देखो इसमें जो है आपके पर्दे का मुकम्मल एहतराम रहेगा। तो आपने जब देखा तो बहुत खुश हुई, बहुत खुश हुई और इरशाद फरमाया कि तुमको अल्लाह जज़ाए खैर दे, देखो तुम जो है तुमने बहुत अच्छा और नेक काम किया है। अल्लाह अकबर। हजरत फातिमा ने इरशाद फरमाया कि जो है हजरत मौला अली से कि आए मौला अली, हमारा जनाजा रात में उठाना और हमको गुस्ल भी ना देना, हम खुद गुस्ल कर लेंगे, जिस गुस्ल में हम रहेंगे उसी गुस्ल में हमको दफना देना। तो हजरत फातिमा ने असर के करीब गुस्ल फरमाया और रात में आपका विसाल हो गया। और फिर हजरत मौला अली ने आपको उसी गहवारे में ले जाकर नमाज जनाजा पढ़ाकर चंद लोगों को लेकर आपने लहद में उतार दिया, आपको दफना दिया। अल्लाह अल्लाह। हजरत फातिमातुज़ ज़हरा के आखिरी वक्त तक, बल्कि नमाज जनाजा तक किसी गैर महरम की नजर नहीं पड़ी। इतना बड़ा एहतराम, इतना बड़ा जो है पर्दे का एहतमाम हजरत फातिमातुज़ ज़हरा ने किया है। अल्लाह अल्लाह। अर्ज करती हैं, अब्बा हुजूर, हमने दर्जी को न आते देखा है न जाते देखा है, पता नहीं कौन दर्जी लेकर आया है कपड़ा। मेरे मुस्तफ़ा ने इरशाद फरमाया, अरे फातिमा, ये दर्जी कोई दुनिया का दर्जी नहीं है, ये अहले बैत का दर्जी जो है जिब्रील अमीन सिदरा के मकीन है, वो कपड़ा जन्नत से लेकर आए थे। ये है हजरत इमाम हसनैन करीमैन का मकाम अल्लाह की बारगाह में, रसूलुल्लाह की बारगाह में। अब मुस्तफ़ा की बारगाह में खड़े हो जाइए और